सभी सनातनी को मेरा प्रणाम, नमस्कारम। Today I will discuss about the various questions asked by the devotees through mails, through WhatsApp. They are asking me that Bhairava is beyond good and bad. What are the core gunas of Bhairava that a sadhak must cultivate within? Like such several questions they are asking. I will try to my best to answer each and every questions of the devotees. Now, answer of this question is the as per the my experience of past 61 years and what I have learned from my father, and also what is written in the various book of the Bhairava Khand, Kula Tantra, Skanda Puran, Avantika Khand, and Kaulachar books, everything. I will try to explain. In Rudra Bhairav Khanda of the Skanda Purana, Bhairava is described as Sarva Tattva Sarupa. Means what? The embodiment of all principles, neither limited by dharma nor adharma. Same thing how Kula Tantra speaks. Kula Tantra speaks of Bhairava's quality as Aghora, Krodha, Karuna, Gyan and Anugraha. Fierce yet compassionate. अब देखिए, भयंकर भी है और कंपैशनेट भी है, जो मैं पहले भी बता चुका अपने पॉडकास्ट में। डिटैच्ड येट प्रेजेंट, आपको डिटैच भी हो रहा हो और आप अपने आप को प्रेजेंस भी फील कर रहे हो। द भैरवा तंत्र अगेन डिस्क्राइब्स एज these as 5 internal flames that burn away duality in the seeker. ये duality and non-duality in Hinduism is very common word. गीता में, महाभारत में जब कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, वहां भी नॉन डुअलिटी का जिक्र होता है, अद्वैतवाद। इसमें क्या है, जैसे कि नॉन डुअलिटी जो एग्जाम्पल अद्वैतवाद के दिया गया है, इन हिंदुइज्म इज द आइडिया दैट देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द सेल्फ, डिवाइन and rest of existence. Interconnectedness with the world. Non-dual comes from the Sanskrit word Advaita, which means क्या? Not two. हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति सब एक ही है। यही भगवत गीता हमें सिखाता है, teaches step by step method to develop non-duality, oneness through self-discipline, self-awareness, self-purification and self-transformation. Same thing here. So many places the duality, non-duality terminology is used in all these books. So I am trying to explain what is the meaning of duality and non-duality. Now another questions that devotees are asking, Bhairava gunas aligned with the Triguna. Trigunas means Sattva, Rajas, Tamas, or we can say Sattvic, Rajasi, Tamas, or do they transcend them? Yes, answer Kula Tantra chapter 8. Please verify what I am telling you. In Kula Tantra chapter 8 clearly states यस्य त्रिगुणातीता
सा एव भैरव स्मृता। देखिए साफ साफ लिखा है, हु ट्रांसेंड्स द थ्री गुणास इज नोन एज भैरवा। हमारे मंदिर में भी त्रिगुणात्मक श्रृंगार भी साल में एक बार होता है, दिसंबर के महीने में, बहुत ही भव्य रूप से। जो सुबह में बाबा का सात्विक श्रृंगार होता है और शाम को बाबा का राजसी श्रृंगार और रात को बाबा का तामसी श्रृंगार। एक ही दिन में 3 रूप में बाबा का दर्शन श्रृंगार होता है, जो हमारे परिवार के सदस्य बहुत भव्य रूप से करते हैं। अब त्रिगुणास बिलोंग्स टू प्रकृति। मैं फिर बोल रहा हूं, सब जगह कहीं न कहीं आपको लॉ ऑफ नेचर से हर चीज जोड़ रहा है। भैरवा इज तुरैया, तुरैया से द फोर्थ स्टेट ला रहा है। देखिए 3 स्टेट ऑलरेडी वी नो। प्योर कॉन्शियसनेस, शिव तत्व, मतलब क्या, परमानंद, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं जिंदगी में, जीवन में, ये बताना चाह रहा है। वही स्कंद पुराण बता रहा है, दिस व्हेन लॉर्ड शिवास, जो वेद व्यास और आपका लॉर्ड कार्तिकेय में शैला माउंटेन पर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ना सत्तो ना राजो ना पीतमो भैरव। देखिए अब देखिए तीनों चीज जिक्र कर रहा है, ना सत्तो ना राजो ना पीतमो भैरव। भैरव इज द विटनेस ऑफ ऑल थ्री। भैरव सब में है, तीनों में है। हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? Thus the Bhairav does not reject the gunas but uses them as instruments of liberation। मतलब क्या कि हमारे भैरव साधक ईश्वर आपके गुण अवगुण दोनों को रिजेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको मोक्ष की प्राप्ति में एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही प्रश्न और डिवोटी पूछ रहे हैं कि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है क्या भैरव, सर्व तत्व स्वरूपा क्या है? ये फिर लिखा है तांत्रिक सेवा बुक में, that call Bhairav as the सर्व तत्व स्वरूपा, the embodiment of all tattvas। In other words, जो और भी तरीके से हम बोल सकते हैं, भैरवा pervades every aspect of reality beyond ordinary notions of right and wrong। कितना साफ शब्दों में लिखा है कि हमें सही और गलत से ऊपर ले जाता है। यही बात भैरव स्तोत्र में भी लिखा है, भैरव इज द सुप्रीम ऑल परवेडिंग लॉर्ड शिवा who is himself present in each and everything that exists and through realization reveals himself as the one limitless Bhairava, और यू कैन से भैरवनाथ और भैरवनाथा, जो आप उसको नाम देना चाहते हैं। ये फिर क्या बोलता है कि शिवा इन हिज फर्स्ट एस्पेक्ट इज द इनफाइनाइट रियलिटी विद इन ऑल, आदि से अनंत, नॉट सब्जेक्ट टू डुअलिटीज ऑफ धर्म अधर्म। देखिए डुअलिटीज नॉन डुअलिटीज हर जगह आएगा, आप पहले की बात को दिमाग में स्मरण रखे रहिएगा। इन प्रैक्टिस devotion to Bhairava leads the aspirant to recognize the entire universe as the self। कितनी बड़ी बातें देखिए पुस्तक में भी लिखी हुई है। यही हम बताना चाहते हैं सभी साधक को, सभी सनातनी को, कि आप समझने की कोशिश कीजिए। पूरा प्रकृति कहिए, संसार कहिए, जो भी उसका नाम दीजिए, सब हम स्वयं में हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है, बस हमें जानने की जरूरत है। तांत्रिक सोर्सेज लाइक द कुला तंत्र, जो मैं बोल चुका बार बार, enumerates 5 primary attributes of भैरवा, that अघोरा, क्रोधा, करुणा, ज्ञाना, अनुग्रह। ये सब संस्कृत शब्द हैं और जिसका ट्रांसलेट हम दूसरे तरीके से रफली भी कर सकते हैं कि अघोरा मतलब टेरिबल फियर्स,
क्रोधा मतलब wrath, करुणा कंपैशन, ज्ञान नॉलेज, अनुग्रह ग्रेस या ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलना. These are not moral labels but archetypical states of consciousness associated with Bhairava's energy. अघोरा जो नॉन टेरेबल इंटेंसिटी है, the word suggests itself fearsome power. भैरवा घोरा nature actually purifies and empowers the devotee. Terrifying Bhairava Shakti that makes the practitioner steadfast and courageous. मैं देखिए बता रहा हूं, आपके अंदर जो भैरव शक्ति आ गई तो आप बहुत ही साहसिक बन जाएंगे, करेजियस बन जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे. भय खत्म हो जाएगा. इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, द फियर्स इंटेंसिटी ऑफ भैरवा या घोरा burns away doubts and fear, bestowing boldness. मतलब क्या, आपके अंदर जो भय है उसको जला देता है, जो कंफ्यूजन है खत्म कर देता है. आप अपने आप में बोल्ड बन जाते हो, बिल्कुल भय रहित, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं. उसी तरह से क्रोधा, जिसको रैथ बोलिए या फियरलेसनेस बोलिए, that Bhairava intolerance of ignorance and duality. ठीक है, हर जगह duality वर्ड आ रहा है. और इग्नोर करना से गुस्सा क्यों आता है? हम इग्नोर नहीं करते तो गुस्सा आता है. By recognizing that nothing is truly separate from Shiva, the devotees loses all fear. समझने देखिए, कोशिश कीजिए. आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि सब कुछ में शिव है, सब शिव तत्व है, आपका सारा भय उसी दिन समाप्त हो जाएगा. When one realizes everything in existence is you alone, आप जिस दिन ये महसूस कर लेंगे, then the darkness of your mind has been destroyed. सारा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, अंधकार जो आपके दिमाग में चल रहा है सब समाप्त हो जाएगा. एंड द डिवोटीज इज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ, उसको किसी से भय नहीं होगा ऑफ डेमन्स, और मतलब राक्षसी प्रवृत्ति कहिए या किसी भी दैत्य शक्ति से, और या इवन या मतलब डेथ, उसको मृत्यु से भी भय नहीं लगेगा. तो हम क्या बोल सकते हैं रैथ को या क्रोधा को? Wrath becomes the fearless clarity of non-duality. बहुत बड़ी बात बता रहे हैं ये बुक में. मतलब अद्वैतवाद के लिए यह आपका क्रोध है, ये भय से दूर कर देगा. भय, fearless clarity of non-duality. करुणा, इसको compassion. भैरवा is also supremely compassionate. कई बार बोल चुका हूं, मर्सीफुल एंड कंपैशनेट, जैसे भी नाम दीजिए. इन ए मोमेंट ही डिस्ट्रॉय द टॉर्मेंट्स एंड सफरिंग ऑफ दिस वाइल्डरनेस ऑफ संसार. देखिए कितनी बड़ी बातें एक जन बता दी गई है इस बुक में. भैरवा एज ए लॉर्ड ऑफ मर्सी हु इंस्टेंटली बर्न्स अवे कार्मिक पेन. Karuna then is Bhairava's grace that alleviates suffering and awakens the soul to its own divine nature. क्या कहना चाह रहा है कि आपकी जो कार्मिक पेन है, जितने आप पिछले 100 जन्मों में, कितने जन्मों में क्या क्या आप कर्म किए हैं आपको नहीं पता, और कितनों को आप तकलीफ दिए हैं, कार्मिक पेन उसको जला दे रहा, खत्म कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. थ्रू व्हाट? थ्रू करुणा, थ्रू कंपैशन. अब आता है ज्ञान, नॉलेज, क्लैरिटी. भैरवा इम्बॉडी सुप्रीम नॉलेज. देखिए सुप्रीम नॉलेज वर्ड इस्तेमाल हो रहा है. हिज ग्रेस ग्रांट्स क्लीन एंड क्लियर विजन ऑफ वननेस.
देखिए किसी तरह का कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है, क्लीन एंड क्लियर विजन होना चाहिए विद द डिवाइन। भैरवा ग्रेस ब्रिंग्स एन इंस्टेंटेनियस clear vision of unity that soothes the mind। कितनी गूढ़ बातें बताई गई है, देखिए। दिस इज द लुमिनस अवेयरनेस बाई विच ऑल डुअलिटीज डिसॉल्व। देखिए ये प्रकाशमय ज्ञान है जिससे आपके अंदर जो द्वैतवाद चल रहा है, जो मैं हम हमेशा बोलते रहते हैं हर इंसान के अंदर, बस कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये सब डिसॉल्व कर देता है। अब अनुग्रह के बारे में बताएंगे आपको। अनुग्रह मीन्स ग्रेस, स्टिलनेस। भैरवा ब्लेसिंग और ग्रेस दैट इटसेल्फ वर्ड्स फ्लडिंग द हार्ट लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पीस। स्ट्रीम ऑफ पीस देखिए वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, मतलब शांति की बिल्कुल धारा बह रही है। एंड फिलिंग द कॉन्शियस विद स्टैटिक स्टिलनेस। मतलब क्या समझ रहे हैं स्टैटिक मतलब यहाँ क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? परमानंद, ब्लिस, इंथुजियाज्म, यूफोरिया, उससे पर कोई आनंद है ही नहीं है। इसको एग्जांपल समझा सकता हूं मैं। भैरवा फिल्ड विद भैरव प्रेजेंस जो है, हिज कॉन्शियसनेस इंटेंसली dances and sings enjoying its own ecstasy। जो भगवान शिव या काल भैरव जो डांस कर रहे हैं या गा रहे हैं, जो तांडव चल रहा है, उसमें खुद देखिए वो परमानंद का भाव आता है। जब आप साधक उस तरह का भाव अपने मन में ला लेते हैं, जो कौलाचार में भी दिखता है, जो कौलाचार साधक होते हैं सिद्धांताचार के बाद, वामाचार और सिद्धांताचार, कौलाचार, उसमें ये सब बातें नजर आती है जो ये पुस्तकों में लिखा, जो मैं बताना चाह रहा हूं। Even amid that intensity, there is a deep stillness of grace. Means what? A sense that all is held in Shiva's embrace। मतलब क्या? मतलब सब जगह शिव तत्व है, सब जगह शिव के कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। इस प्रकृति में, इस संसार में, इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में। अब और क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, 5 इंटरनल फ्लेम्स, इसको आप स्टेट ऑफ अवेयरनेस नाम भी दे सकते हैं। और मॉडर्न इसको तंत्र में, भैरव तंत्र में कई जगह लिखा है 5 क्वालिटीज। चाहे वो इंटरनल फ्लेम्स वर्ड दीजिए, चाहे 5 क्वालिटीज ऑफ भैरव तंत्र, जो भी नाम दीजिए। दैट कंज्यूम्स डुअलिटी। फिर डुअलिटी देखिए आ रहा है, मैं चिल्लाना, वो कंज्यूम कर रहा है। क्रूशली दे आर द स्टेट ऑफ अवेयरनेस, क्लैरिटी, ज्ञान, इज द इनर लाइट ऑफ रियलाइजेशन, फियरलेसनेस, वही भी क्रोध आता है, इज द माइंड्स बोल्ड करेज, वंस इट knows there is no other to fear compassion। fear compassion फिर क्या आ गया? करुणा। is the boundless love that destroys suffering on the spot। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा तुरंत तत्काल खत्म कर देता है पूरा। अगेन अघोरा जो है इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी दैट मेक्स द सोल स्टीडफास्ट एंड स्टिलनेस। जो भी ऊपर बताया हूं, परमानंद और ये अनुग्रह, ये दोनों चीजें जो आपको स्ट्रीम ऑफ पीस इन द हार्ट देते हैं। टुगेदर दिस 5 आर सेट टू बर्न अवे ऑल सेंस ऑफ सेपरेशन। मतलब क्या हो रहा है? बर्न सेपरेशन से क्या मतलब हो रहा है? बर्न अवे डुअलिटी एंड रीचिंग टुवर्ड नॉन डुअलिटी, ये इसका मतलब है। लिविंग ओनली अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस। यही चीज देखिए स्क्रिप्चर उसमें लिखा भी, स्कंद पुराण में, पुरातंत्र में लिखा, भैरव तंत्र सब में लिखा यही बात को जो मैं बता रहा हूं।
ये प्रश्न, दिस क्वेश्चन earlier also I tried my best to reply. I don't know why this question has been again asked. How can a seeker use daily challenges as a field to embody भैरव गुणास? भैरव गुण कैसे उसको embody कर सकते हैं? इसमें भैरव तंत्र जो बताता है, इन फियर, इन एंगर, इन प्लीजर, ऑल एज ए वाइब्रेशंस ऑफ शिवा। ये बहुत बड़ी बात है जो हम देखते भी हैं, भय में भी, गुस्से में भी और खुशी में भी, सब में वाइब्रेशन शिव का ही मिलता है। आप समझ रहे क्या मैं बोल रहा हूं? अब यही चीज कुला तंत्र कैसे बोलता है? कुला तंत्र जीवन मुक्ति साधना शब्द बोल रहा है। मीन्स व्हाट? अवेकनिंग द वर्ल्ड, नॉट अवे फ्रॉम इट। स्कंद पुराण में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? हाउ इवन क्षेत्रपाल भैरव गार्ड्स धर्मा बाय वॉकिंग अमिस्ट chaos, सिंबलाइजिंग मास्टरी थ्रू एंगेजमेंट। ये क्षेत्रपाल भैरव के बारे में मैं अपने अनसीन भैरवा इन काशीज और भी पॉडकास्ट में जिक्र कर चुका हूँ। अष्ट लक्ष्मी के जो अक्षक अष्ट भैरव के वहां भी क्षेत्रपाल हैं और हर जगह क्षेत्रपाल भैरव होते हैं। वो कैसे आपको धर्म का गार्डिंग कर रक्षा कर रहे हैं। सो डेली लाइफ बिकम्स ए लिविंग यंत्रा। कितनी बड़ी बात देखिए, कंक्लूड करके बताना चाहता हूँ कि आपका प्रतिदिन का जो दिनचर्या है, आप सुबह से शाम तक ओवरस्ट्रेस लाइफ जी रहे हैं, उसको आप एक लिविंग यंत्र मानिए। ईच कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कम्फर्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज अवेयरनेस एंड एक्सप्रेस भैरव भाव। यहां भैरव भाव से क्या मतलब है? डिवाइन स्टेडीनेस, फियरलेसनेस एंड कंपैशन। आप हर चीजों को, कॉन्फ्लिक्ट हो, डिस्कम्फर्ट हो, जो भी आप उस दिन सुबह शाम डेली फेस कर रहे हैं, उसको भैरव भाव से लीजिए, उसको अंदर ये भाव लाइए। आप धीरे धीरे अंदर, आपके अंदर शिव तत्व जागृत होगा और अपने आप शांत हो जाएंगे। जितना आपके अंदर क्रोध हो और ये जो सारी समस्याएं आ रही हैं। एक क्वेश्चन और डिवोटीज आर आस्किंग दैट भैरव साधक जो जर्नी है उनका पूजा करने में, हाउ डज वन बैलेंस क्रोधा विद डिवाइन फ्यूरी एंड करुणा कंपैशन? आर दे अपोजिट्स और कॉम्प्लीमेंट्री शक्ति? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। आई read from all these books how to answer this question. In Avanti Khanda of Skanda Puranas, what says? Bhairava's Rudra form destroys ignorance, but his Soumya aspect protects devotees. See, Rudra form destroys ignorance. आपकी अज्ञानता को ईश्वर माफ कर देता है, इग्नोर कर देता है, और आप सौम्य एस्पेक्ट जो है वो प्रोडक्ट्स करता है डिवोटीज को। दोनों बात देखिए बोल रहा है। सेम थिंग कुला तंत्र, हाउ यूज क्रोधा एज एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट हेट्रेड। आप गुस्से को जो है उसको एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मान रहे हैं, न कि उससे घृणा कर रहे हैं। द फायर दैट प्यूरिफाइज। सेम क्वेश्चन का आंसर भैरव तंत्र में क्या दे रहा है? क्रोधम शुद्धम आवायित्व करुणाम उदानीयते। देखिए कितनी बड़ी बात बोला गया है। क्रोधम शुद्धम भावायित्व करुणाम उदानीयते मतलब व्हाट? व्हेन एंगर इज प्यूरिफाइड थ्रू अवेयरनेस, इट बिकम्स कंपैशन। हम कैसे कंक्लूड कर सकते? तीनों बुक का जो उनका लिखा हुआ है, बोथ क्रोधा एंड करुणा आर टू करेंट्स ऑफ सेम शक्ति फ्लोइंग थ्रू एन अवेकन्ड बीइंग। मतलब हर इंसान के अंदर राम और रावण या क्रोध भी है, करुणा भी है, करेंट से भक्ता सेम शक्ति से
जो उसको वह एहसास कर सकता है, अवेकेंड बीइंग, जागृत करके देख सकता है वो। अब एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, भैरव गुण साधना का इनर मीनिंग क्या है? इज इट मेंटल डिसिप्लिन और एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग ऑफ द सोल्स ट्रू नेचर? वेरी नाइस क्वेश्चन। The Bhairav Tantra describes guna sadhanas as the process of transforming lower tendency, यहाँ lower tendency को I am using the word vasanas, into divine qualities. Divine qualities मतलब क्या? दिव्य ज्ञान। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वासनास इनटू दिव्य ज्ञान, ये पुस्तक बता रहा है। कुला तंत्र में कैसे लिखा हुआ है? कुला तंत्र इंटरप्रेट्स इट एज शक्ति प्रबोधा, मीन्स व्हाट? अवेकनिंग ऑफ इनर शक्ति वेयर द साधक बिकम्स भैरव स्वरूपा। आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते जाओगे और अपने आप तुरंत साधक जो है भैरव स्वरूपा भाव आता जाएगा। यही बात स्कंद पुराण में कैसे जिक्र कर रहा है? भैरवा इनिशिएट्स डिवोटीज थ्रू दर्शना, नॉट टीचिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ वाइब्रेशन, स्पंदा। ये जो स्कंद पुराण में लिखा है, ये सेम इशू सेवरल डिवोटीज, दोज हु हैव टेकन गुरु मंत्र फ्रॉम मी और दे आर गुरु दीक्षा करके वो चैंटिंग करते हैं, वो कई बार मुझसे बताते हैं कि मैं जब माला जाप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, एकाएकी ऑल ऑफ सडन मेरे को 1 मिनट 2 मिनट के लिए बिल्कुल शरीर में कंपन हुआ और बिल्कुल एकदम से पूरा सर से पांव तक एकदम गंगना गया, हिल गया। यही देखिए बात है, ये इंडिकेशन है कि आपके सारे चक्र, आज्ञा चक्र से लेकर सुषुम्ना नाड़ी, पुनर्कुल कुंडलिनी, सुषुम्ना चक्र, मूलाधार चक्र, सब सहस्रार चक्र, सब जागृत हो रहा है, तभी वो स्पंदन आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है। दिस इज द गुड इंडिकेशन ऑफ भैरव साधक जो बटुक जी की साधना कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। ये मैं भी अपने अनुभव से बता रहा हूं, प्लस ये पुस्तक भी बता रहा है। इसको हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? भैरव गुण साधना इज नॉट अबाउट सप्रेसिंग ह्यूमन ट्रेट्स बट refining them into luminous experience of or luminous expression of consciousness। प्रकाशमय परमानंद, इतना ज्यादा आपको आनंद आ रहा है, बिल्कुल प्रकाश दिख रहा है, जैसे आप दीपावली की लाइटिंग देखते हैं तो उस तरह से आपको अंदर में ऐसा भाव जागेगा। These questions now, what the purpose of asking that when one stabilizes in Bhairav Gunas, how does life and perception change? Very nice, very nice. How does one recognize that Bhairav Tattva is awakening within? तो उसको कैसे एहसास होगा कि हमारे अंदर हम भैरव साधना कर रहे हैं, मेरे अंदर से ये भाव भैरव तत्व जागृत हो रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या लिखा है। विघ्न भैरव तंत्र में डिस्क्राइब किया है, साइन ऑफ अवेकनिंग, ना द्वेषम, ना रागम, ना सुखम, ना दुखम, सर्वम भैरवम पश्येत। इतनी बड़ी बातें लिखी है, सब कुछ इसी में बता दिया गया है कि ना द्वेष, न राग, न सुख, न दुख, सब जगह भैरव है। अब वो क्या आंसर चाहिए बताइए? जो मैं बोल रहा हूं हर पॉडकास्ट में, ये पुस्तक भी बता रहा है। When one sees everything as Bhairava, dualities dissolve. Dualities, non-dualities, मतलब आप अपने आप नॉन डुअलिटीज की तरफ चले जाओगे। इसी बात को कुला तंत्र कैसे बता रहा है? कुला तंत्र adds that the seeker's aura and speech become magnetic, carrying शक्ति। जब आपके अंदर एहसास होता है कि मेरे अंदर भैरव तो जागृत हो रहा है, तो आपका ऑरा, आपका बॉडी की पर्सनालिटी, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नीफाइंग ऑरा एंड स्पीच, जो आप बोल रहे हो, दैट बिकम्स वेरी पावरफुल, वेरी मैग्नेटिक।
और वो कैरिंग एक शक्ति से आपके शब्द की एक वजन होती है। यही बात स्कंद पुराण में कैसे लिख रहा है? स्कंद पुराण वो जिक्र कर रहा है दैट भैरव ग्रांट्स अघोरा दृष्टि, अघोर दृष्टि। बोलते हैं ना, इसे अघोर लोग होते हैं, पूरा बाबा कीनाराम थे, अगर साधक बन गए तो उस स्टेज पे पहुंच गए तो वो उनको विजन ऑफ फियरलेसनेस एंड यूनिटी, अघोर दृष्टि में उनको सब दिखता है, भूत वर्तमान भविष्य, ये बहुत हायर स्टेट का है। लेकिन ये सब होता है, भरत तो आपने कहा जागृत होता है, ये सब कटु सत्य है, होता है, हकीकत है, और ये बुक में भी लिखा है। मैं कैसे इसको कंक्लूड करता हूं? सच ए पर्सन मूव्स फ्रॉम लाइफ अनटच्ड बाय एक्सट्रीम्स, रेडिएटिंग पीस एमिस्ट काओस। वो शांति को रेडिएट करे, बशर्ते कि चीखना, चिल्लाना, रुद्र रूप धारण करना। इंटेंसिटी अमिस्ट स्टिलनेस, दैट इज द भैरव गुण। I tried my best to answer your all queries। फिर कभी किसी मुद्दे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।